everyone. Welcome to our first episode of Bate and Beyond. This is a space where we have honest, real conversations without filters and different perspectives. So today we are going to discuss about a topic which is a topic which is actually connected to all of us. That is pressure. So is this pressure within that is from us or is it from the society? So let's understand and have a discussion on this. So I really would like to know So that. yeah, so I guess that half of the pressure it's actually borrowed. It's not within us. It is actually borrowed from the मैं society. एक चीज इंटरजेक्ट करूं, मुझे पहले जानने का है कि प्रेशर क्या चीज है। बेसिकली देखो, सपोज अभी थोड़े टाइम पहले ही जैसे हम लोग बात कर रहे थे एंड वी वर लाइक निकिता यू हैव टू डू द इंट्रोडक्शन, तो आपको ये करना है वो करना है, आपको आप इतने अच्छे हो, आप अच्छे से बात करते हो, ये करते हो वो करते हो, तो शी वाज लाइक अरे मुझे प्रेशर फील हो रहा है। तो बेसिकली इट्स अ फियर ऑफ फेलिंग टू अदर्स एक्सपेक्टेशन। नहीं आएंगे। मतलब दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे हम खड़े ना उतरना, दिस इज प्रेशर आई फील, नथिंग एल्स। क्योंकि हमको तो क्या है यार, हमको तो नहीं होता है प्रेशर, मतलब पर्सनल प्रेशर ऐसा जैसा कुछ मुझे नहीं लगता कि किसी को फील होता है अनलेस एंड अनटिल somebody is imposing something on you। expectations का वो बर्डन ना बर्डन हो जाता है यार, उसकी बर्डन। I have to perform, I have to perform, performing pressure। बट आई ऑल्सो फील कि एक परसेप्शन होता है, मतलब एक होता है इमेज जो हम खुद की इमेज रखते हैं अपने माइंड में, और एक इमेज होती है जो सोसाइटल इमेज होती है, जो व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, जो लाइक यू वर सेइंग कि अभी व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस इंट्रोडक्शन, so there is a certain amount of expectation which people who already know me might have from me, and so when they, like, even when I posted on my social media, and there were a couple of my friends who were like, wow, you're finally doing this. So I was like, yeah, like they have expectations from me, obviously। and when it comes to myself, I don't think I have that much expectations from myself from a podcast, because I know this is a new space for me, this is a learning curve for me, and I'm getting to do something which I always wanted to for a long time, but हो नहीं पाया। So मुझे नहीं लगता मेरे को कोई expectations है, but societal expectations societal है। expectations, yeah। So I would actually like to add a point that pressure हमेशा है ना, it's not self, it's actually it's borrowed from the society। Why? Because society wants that till this to this age you study, from this to this age you earn money, and from this to this age you get married or you get settled in life, and we actually back of our minds think कि भाई अभी तो मैंने चालू नहीं किया है, आई एम नॉट इवन एंटर्ड, एंड दे आर पोजिंग कि भाई ये से ये कर, ये से ये टाइमलाइन में ये कर, और आफ्टर दैट आफ्टर यू अर्न गेट मैरिड and get settled। मतलब not everyone, but yeah, there are people in society who think that way, and we think that we have not even started and they are telling us to do this, so that actually becomes a pressure। ओके, तो मेरा ओपिनियन ये है कि प्रेशर जो है इट कम्स फ्रॉम द सेल्फ। सोसाइटी आफ्टर ऑल इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्फ्स, and each self is competing to show that I am the best self alive। very true, very true। And उसके कारण some people like there's a very famous quote, comparison is the thief of joy। अगर तुम कंपेयर करो तो तुम्हारा हैप्पीनेस छूट जाएगा, और जब हैप्पीनेस छूट जाता है तभी प्रेशर आता है। तो when a self exists जो क्या होते हैं कंपेयर ही नहीं करता, ये सेल्फ के लिए प्रेशर बहुत कम रहता है। अभी इसको और कैसे आगे बढ़ाओ? बेसिकली अभी जैसे मेरे 12th के मार्क्स आए, ठीक है, I was ashamed of my marks। मैं सबको कैसे बताऊं, मेरे दोस्तों को इतने आ रहे हैं, इनको इतने आ रहे हैं, लोग मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि people think I'm like good in studies, but actually I'm not यार। But basically I feel pressure comes from shame that you have। Yes, that's true। But if you be shameless, you don't feel that pressure, कि परफॉर्म करना है ये वो। हाँ यार मैं सीख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसमें मार्क्स नहीं आए, मैंने कहीं और अच्छा किया है, मेरे को एक अच्छी एडमिशन मिली है, वो कहीं तो ना, like seeing the optimistic side, when you start doing that I feel pressure थोड़ा कम हो जाता है, and you perform better, you start living life better। एक आयरनी है उसमें कि मतलब प्रेशर तभी आता है जब we are perceiving it। Yeah, exactly। अगर हमने सोचा कि प्रेशर रियल है तभी वो हेवीनेस। अगर बोल दिया कि प्रेशर माया है तो फिर इमीडिएटली चला जाता है। Okay, but I actually wanted to share
जो मैंने अभी पर्सनली मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे लगता है प्रेशर फियर से भी आता है। वेरी ट्रू। क्योंकि Very lot of true, times ये जो 100%. expectations होते हैं, उसका क्या आउटकम होगा हमें पता नहीं होता। Like especially if you're choosing a path which is not a very like taken path, कुछ अलग करने जा रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, तो जैसे मतलब कंपैरिजन तो तभी हो सकता है अगर आप वो कन्वेंशनल पाथ ले रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल कर रहे हो जिसका आपको कोई इमीडिएट रोल मॉडल है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ पहुंचोगे। वेरी ट्रू। और वो और फियरफुल सिचुएशन होता है, उसका भी एक अलग प्रेशर होता है, बिकॉज हाँ। फियर ऑफ जजमेंट भी होता है, क्योंकि आपने ये पाथ चूज तो कर दिया ना, आपको पता है कि आप कहाँ पहुंचोगे, ना कोई और आपको बोल सकता है, और वो वैलिडेशन कहाँ से लोगे। Yeah, and yeah, जो तू बोली that it's a fear of getting judged. So I would like to add that sometimes the pressure is actually internalized. मतलब जो सोसाइटी की वॉइसेस है ना, अपने उसको इंटरनलाइज करके ना खुद पे ले लेते हैं that मेरे को ना बहुत जल्दी सक्सेस चाहिए, और उसके चक्कर में क्या होता है, वो चक्कर क्या रहता है ना कि इट्स अ फियर ऑफ बीइंग कंपेयर्ड, इट्स अ फियर ऑफ गेटिंग जज्ड बाय द सोसाइटी। तो दैट्स व्हाई वो आता है कि भाई मेरे को जल्द से जल्द सक्सेस लेके ना सामने वालों को प्रूव करना है, दूसरे लोगों को प्रूव करना है। व्हाई? बिकॉज इट्स अ फियर ऑफ गेटिंग जज्ड और कंपेयर्ड विद The अदर्स। greatest source of pressure is identity. अगर तुमने एक आइडेंटिटी चूज कर लिया तो फिर तुम्हें निभाना पड़ेगा, उस पे खरा उतरना पड़ता है। हाँ, यस, कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, हाँ, और अगर हाँ, नहीं किया ऐसा तो अब क्या होगा। हाँ, मतलब आप फ्लूइड, मतलब सी अगर आप कोई नया पाथ ले रहे हो, अनकन्वेंशनल पाथ ले रहे हो, तो लोगों का एक सेट एक्सपेक्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है तो एक सेट एक्सपेक्टेशन होता है, लेकिन अगर वो अपनी डॉक्टरी छोड़ के कुछ एडिशनल चीजें करने लग जाए या एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाना चालू कर दे कि ये भी मैं कर सकती हूँ, या like this is how I want to heal or touch people or whatever, so then the people are also like puzzled, अरे भाई मतलब ये exactly क्या है, क्या करना चाह रही है। yeah, and sometimes it's also like that अपने चालू भी नहीं करते हैं, and people are like that you should before even starting or before even taking the first step towards the thing, you should have the clarity कि भाई तुम इस फील्ड में पहले से हो 5 साल 10 साल से अभी जैसे आई एम 18 years old and whenever somebody asks me आपको करियर में क्या करना है, and I'm like I'm still figuring out, और ये मैंने फिगर आउट किया है, मुझे इसमें आगे जाना है, they are like you don't have it all figured out, what are you going to do, you're going to end unemployed, आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा, पर अरे यार But nobody has it all figured Exactly. out, especially in today's day and age. How is it possible to figure It's out actually not possible, and people want कि आपके पास पहले से ही वो क्लैरिटी, उस तरीके की क्लैरिटी हो कि आप पहले से ही उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में 5 या 10 साल से काम करो, मतलब भले 2 या 3 साल। हाँ, हायरिंग के बाद किसको भी तुम्हारे लिंक्डइन पे न्यूबी देखना नहीं है, फ्रेशर देखना नहीं है, सबको है ना एक्चुअली, मतलब इंटर्नशिप्स में भी आजकल काफी जगह इंटर्नशिप्स में भी हो रहा है, लिंक्डइन पे पोस्ट आते हैं इंटर्नशिप और क्या चेक कि मतलब इट्स लाइक 1 year of experience, 2 years of experience, kind of क्यों करेंगे? तो Exactly. इंटर्नशिप क्यों? Experience के लिए अगर तो internship हाँ करते हैं। अगर 1 या 2 साल का आदमी को पहले से एक्सपीरियंस है तो वो इंटर्नशिप का मतलब क्या? हाँ, मैंने तो यहाँ पे ये भी देखा है, लाइक अब्रॉड वर्सेस इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कंट्री में ना इंटर्नशिप्स में सी बेसिक डिसेंसी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप इंटर्नशिप में बेसिक स्टाइपेंड दो या आप ट्रैवल अलाउंस दो, treat the person properly. very Yeah. true. You cannot have unexpected. मैंने देखा इंटर्नशिप्स में फुल टाइम एम्प्लॉय से ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशन Very true. And this is what increases pressure on the interns. और ये तो प्रेशर, ये तो वर्क प्रेशर है, you can't avoid work pressure. इंडस्ट्री में आया भी नहीं Exactly. He is just trying, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो इंडस्ट्री में आना चाहेगा वो नहीं चाहेगा, घुसेगा ही नहीं ना उस इंडस्ट्री में, मतलब इट्स लाइक ये है ही नहीं मेरे लिए, वो फिर Yeah, और करने चला जाएगा। तो अच्छा मेंटर या अच्छा इंटर्नशिप वाली मतलब ऑर्गेनाइजेशन मिलना भी बहुत मुश्किल Yeah, है। this is हो also जाती है। pressure only. This it's is a work pressure. But work pressure is something that like almost every level of person will have. पर work pressure I guess थोड़ा work नहीं तो लोग काम ही नहीं करेंगे। Especially interns के लिए बैलेंस कर देना चाहिए। बैलेंस प्रेशर हो क्योंकि अगर बैलेंस, क्योंकि काफी जगह पे बैलेंस नहीं होता है, आई एम सीइंग पीपल आर एक्चुअली डिस्टर्ब्ड बिटवीन द वर्क लाइफ एज वेल एज द पर्सनल लाइफ। बोलते हैं ना, घर काम का गुस्सा घर पे आके किसी फैमिली मेंबर पे निकाल, अरे तो अब सामने वाले पे जब वैसा टाइप का प्रेशर रहेगा तो वो आदमी करे क्या? उसको भी तो मतलब अपना उसने जो माइंडसेट बनाया हुआ, अपना जो कैरेक्टर उसने सबके
स्पेशली सुपीरियर्स के सामने रखा, वैसे उसको एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे वर्क्स फॉर प्रॉफिट, टू थिंग्स, वर्किंग फॉर प्रॉफिट एंड वर्किंग फॉर द गोल्स, कि इस महीने का ये गोल है, सपोज फॉर एग्जांपल रिटेल फर्म है, महीने का मेरा गोल है कि मेरे को 1 लाख कैसे भी करके प्रॉफिट अचीव करना है, तो वो 1 लाख करना ही करना है, फिर चाहे उसके एम्प्लॉय के सामने वाले पे कितना ही प्रेशर हो। मतलब काफी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो वो चीज को रखती है, मतलब ऐसा प्रेशर डालती है, और काफी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बैलेंस वे में चलती है, बोलती है कि ठीक है तेरे से नहीं हो पा रहा है, ओके यू ट्राई सम डिफरेंट एंगल, कोई डिफरेंट टाइप से ट्राई कर, दे सपोर्ट चाहिए, कुछ दे रिसोर्स मोटिवेट, but सपोर्ट द actually पीपल, nowadays दैट एम्प्लॉय। a lot of companies have started reforming their employees कि तू ये डिग्री लिया है, तुझसे ये नहीं हो रहा है, you shift to this thing। मतलब मैंने मेरे दोस्तों से सुना है कि they have कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रेशन, हाँ लीनियर प्रोग्रेशन, मतलब वो लोग को एक्सपांड करने का चांस दे रहे कि तू यहाँ पे ट्राई कर, तुझे फायर नहीं करता, थोड़ा कम स्टाइपेंड पे यहाँ पे ट्राई कर, थोड़ा यहाँ पे ट्राई कर, see where you fit in, and मतलब they are just training their own asset। करेक्ट करेक्ट, ये इधर बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी करती है या स्टार्टअप्स में मैंने देखा है, स्टार्टअप्स में मैंने ये मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं, और ऐसे जगह पे that's where you feel you're not pressured, you are getting chances and then you perform ना। करेक्ट। बड़े बड़े What are some ways to reduce pressure? हाँ, as a doctor you might Okay, so when you look at pressure, I think first thing is about consciousness. Building an awareness is very important because a lot of times, unknowingly, we are not aware only of what we are feeling and how we are projecting our emotions onto those who are near and dear ones, like around us. Right. So I think building an awareness is very, very important, and accepting that okay, this is what is happening, because a lot of times people are in denial. They don't accept only that something is bothering them. And one point that people, जो तुमने बोला that people are in denial, and as well as in denial, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके ऊपर प्रेशर है, बट उनको कैसे भी करके है ना, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर से ऑर्डर आया है, तो उनको है ना करके ही रहना, चाहे उनके ऊपर कितना ही प्रेशर आ जाए, चाहे कितना ही डिप्रेस्ड हो जाए आदमी, बट दे नीड टू डू, सो इट शुड नॉट बी कि मेरे को करना ही है। अरे एक दिन का गैप दो, 2 दिन का ब्रेक लो, फ्रेश माइंड के साथ, देन यू फिगर आउट व्हाट टू डू, मतलब इतना प्रेशर मत डालो। यहाँ पर एक प्रिविलेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या बोलते कुछ कहते तो मतलब एक सॉल्यूशन फॉर प्रेशर इज यू नीड टू हैव अ प्रिविलेज इनबिल्ट। यस, पहले से ही तुम्हारे सराउंडिंग में ऐसा कुछ तो रहना चाहिए जो तुम्हें अलाउ करे कि ये टूल से I can reduce my pressure. Yeah, very true, very true. I have experienced But this. the thing is, like, if we're talking about pressure in corporate jobs, for example, परफॉर्मेंस प्रेशर, वहाँ पे आपका जो privilege है, everybody cannot have the privilege. Right. Because, see, thing is, when you're working for somebody and you have a responsibility, so there will be an outcome. If you don't take up that pressure and you don't deliver what is expected out of you, either they will ask you gently that what is it that you require in terms of resources, time, etc. And secondly, if still you are not able to deliver, then they will have someone else stringent doing actions. it. Yeah. Do you think Indian corporation में the workplace is toxic? Not if the workplace is toxic, not तो फिर ऐसा प्रॉब्लम रहेगा, people will be in denial. फिर ये कि लोगों को लगेगा कि सोसाइटी जो है तुम्हें प्रेशर दे रहा है, Correct. एंड क्या बोलते हैं एक अच्छा सोल्यूशन नहीं आएगा जिससे हम ये प्रेशर को कम करने का उस पर एक्शन कर पाए। बट आई थिंक दैट नॉट एवरीवेयर, जो उसने बोला ना, हर जगह नहीं, देयर आर फ्यू फर्म्स जो है ना इतना हार्शली या इतना रिजिड स्ट्रक्चर नहीं करते, दे मोटिवेट द एम्प्लॉइज की भाई अगर नहीं हो रहा है ठीक है, यू टेक अ डे और 2 ऑफ, फ्रेश माइंड के साथ वापस से वो फ्रेश माइंडसेट के साथ ज्वाइन कर, देन मतलब कोई एक अलग स्ट्रैटेजी से है ना तू उस गोल को अचीव करने का, क्या पता तेरे वो नॉन प्रेशर मतलब जो होता है जो दूसरे स्ट्रैटेजी से काम हो जाए, बट देयर आर पीपल जो बोलते हैं कि नहीं तेरे को करना मतलब करना, और जाके रेजिग्नेशन लेके आ। So ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्म्स। ये लीडरशिप के ऊपर काम करता है। Yeah, exactly. लीडर कैसा है? Leader, How is the हाँ, leader? that also brings Who up is pressure. heading the company, because it all comes from top to down. So it's another self who that's क्या बोलते हैं जो प्रेशर डाल रहा है, Exactly. जिससे प्रेशर अगर अच्छे से So everybody- Exactly. तो फिर वो जो दूसरा जो सेल्फ है वो ले नहीं पाएगा। I'll just sum this up. So like
हर लेवल पे अलग प्रेशर है और हाँ, वो level पे लेवल pressure का है। प्रेशर सम अप होके नीचे 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 आते जाता है Exactly. और इन कॉर्पोरेट Yeah. so like I have no corporate experience I'm a student right Right. so at my level also कि pressure is also मेरे लेवल पे तो प्रेशर टोटली सोसाइटल है और सेल्फ है कि मैंने कुछ तो प्लान किया है और मुझे मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है और मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिलेटिव्स ने मेरा एक वर्जन देखा है मुझे उस पे खरा उतरना Yeah. सो दैट इज अ सेल्फ एंड सोसाइटल प्रेशर का मिक्सचर है एट अ टीनेजर लेवल Right. फॉर यू इट इज कॉर्पोरेट यू हैव टू अर्न ये वो अलग प्रेशर है फॉर यू आल्सो Independence, the financial इंडिपेंडेंस freedom. का प्रेशर है नाउ आई आल्सो थिंक अबाउट गेटिंग इंडिपेंडेंट आई आल्सो वांट टू मोनेटाइज माय वेज आई आल्सो वांट टू अर्न मनी पर इतना स्केल पे नहीं है because I know मेरे एजुकेशन पूरा नहीं है I have to learn a lot I have no experience I have no one in the industry I have nothing like Exactly. Now, this is again a conversation of privilege. So even when I was in your age, हाँ okay, and when I was doing my studies, हाँ I had the privilege of not having to think about means of livelihood for Monetizing the longest time. things yeah Because you know this privilege was offered to me by my parents. same we are But privileged there yeah are certain and that there is nothing wrong with that. I wouldn't say that even privileged individuals don't self-pressure themselves Yeah. or don't self-motivate themselves. But the thing is that there are individuals जिनके खाने पीने की अगर problems है प्रॉब्लम्स है they are survival मोड में चल रहे हैं Yeah, वो लोग. So in that case उनके ऊपर सेल्फ प्रेशर है. बहुत रहेगा क्योंकि they have to बहुत perform for their parents एजुकेशन के करना है. हाँ सब उनका करना पॉकेट मनी है जो भी है मतलब फ्यूचर It's like that, So you know, like, they अभी- need to basically earn अपने basic needs. Yeah, it's like कि अपने basic needs को भी है ना लेने के लिए to achieve the even basic needs जो day to day की basic they needs have to होती है, earn they need to earn. उसका भी pressure आ जाता और है. कुछ फैमिलीज में तो there are problems they have to go through so much of mental stress यस पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं प्रॉपर्टी मतलब बहुत कुछ हो रहा है लाइक मेरे फ्रेंड्स आई नो आर गोइंग थ्रू दिस एंड उनके मेंटल हेल्थ पे इतना लेवल पे अफेक्ट होता है बोर्ड एग्जाम्स के बीच में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत कुछ Yes. और But उसके that बीच does में not mean that people who have privilege Privilege. don't have problems. एग्जैक्टली आई एम नॉट that. सेइंग मतलब बट आई हर एम सेइंग आदमी कि का प्रेशर कोई ना कोई बढ़ता है Hmm, ऑन देम correct. कि ऐसी सिचुएशन में भी परफॉर्म करना है मुझे आई हैव टू गेट ऑन टू माय एक्सपेक्टेशन मैंने जो मेरे लिए प्लान किया मुझे उसके तरफ जाना है व्हाट इफ आई फेल टू डू दिस ये रहता है Yes, because even with privilege there are Failure. expectations yeah So I would take कि मतलब actually there are more expectations with expectations privilege with और- privilege. and I think that you know जैसे तूने बोला and जैसे तूने वो fail what if I fail वाला बात हुआ so मेरे को उससे याद आया that you know failure ये जो term है ना ये ना automatically ना काफी हद तक और pressure you know वो चीज पे बढ़ा देता है that what if I fail तो क्या होगा भाई आगे क्या होगा तो in the end एक सेंटेंस में तुम बता सकते हो yeah let's sum it up प्रेशर कहाँ से आ रहा है, सेल्फ से आ रहा है या सोसाइटी से आ रहा है और क्यों आ रहा है? So मुझे लगता है प्रेशर आता है सोसाइटी से. However, it is up to you as to how you handle that pressure. I can choose to dismiss The pressure, external yeah. factors. yes But the reality of life is that I also have to stay in that same society. yeah Same. So I cannot be in a denial where I completely don't care about what the society you need thinks. to listen But I can allow the narrative in my head. And if I want to live in peace and achieve whatever I want to achieve, then I have to accept that the society will have whatever pressures. But I will choose to Right. not define that What do pressure. you Yeah. think, Manthan? so for me I agree with Nikita Right. pressure बहुत हद तक सोसाइटल होता है बट आई फील इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोसाइटल एंड सेल्फ क्योंकि आपको तो आपके एक्सपेक्टेशंस पे भी तो खरा होता है ना एट माय लेवल एट माय एज एज अ Yeah. टीनेजर आई फील प्रेशर कम्स विद इन आल्सो मतलब खुद I खुद think- के प्रति जो expectations होती है मतलब you have self expectations from yourself also that also automatic मतलब एक pressure लाता ही है. now let I think Abhi- pressure comes entirely from the self. It Okay. depends on how you perceive it. हाँ. You change the perception, the pressure goes away. No one is asking you to accept what society is thinking of you. You can be a madman and society has the ability to tolerate you. yeah
What about you, and Neha? I would think that it's a type of a mixture. मतलब दोनों से agree करता हूँ that काफी हद तक society से भी आता है और काफी हद तक self से भी आता है. So it's basically a type of mixture. But जब society से आ रहा है ना, it's upon you that how do you internalize that. जब सोसाइटी से प्रेशर आ रहा है, आप उसको अपने ऊपर लेके क्या वे में इंटरनलाइज कर लो. पॉजिटिव वे में इंटरनलाइज करोगे तो हो सकता है काफी हद तक उसका जो बर्डन है वो कम हो जाए. लेकिन ये अगर नेगेटिव वे में, अगर आप फुल फ्लेज्ड वे में अगर उसको प्रेशर टाइम पे आप ले रहे हो ना, तो हो सकता है काफी हद तक बहुत बड़ा बर्डन भी बन के रहता Very है. true, very true. To sum it up, let's end our talk now. Yeah. It was a very candid, It was very conversation. candid and raw, honest. Honest conversation. एकदम Yeah, sensational था. बहुत कुछ था हमें बहुत कुछ बात करने को था, but we have to submit it to a Yeah. time.